So today we are going to talk about the variation of postmodernism. Up till now, whatever we have covered with reference to postmodernism, the difference between the postmodernism and post-structuralism, and we have also tried to find out some similarities between these two theories. In addition to that, we have also covered the origin and the basic introduction of postmodernism. So now we are going to talk about the different variations of postmodernism. As I have already told you in my previous sessions that there are different variations of postmodernism, and these variations are known because of the people, the main proponents of postmodernism. For instance, as I have told you, two, three people, they are very important. There are many other proponents of this theory, but the text that we people are using is covering the philosophy and the assumptions of postmodernism given by three main people. For instance, the Jacques Lyotard, J.F. Lyotard, then उसके बाद याक्स डेरिडा एंड देन पॉल मिशेल फूको. ये इनके जो वर्क हैं दे आर बीइंग डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट. समहाउ सिंथिया वेबर का कॉन्सेप्ट राइटिंग द सोवरेनिटी, राइटिंग द स्टेट, एंड डेविड कैम्पबेल की भी हमने पढ़ी है सिक्योरिटी, राइटिंग सिक्योरिटी के ऊपर भी, और आर जी वॉकर भी है इसके अंदर. लेकिन इन टुडेज लेक्चर we would be focusing more on the philosophy given by three peoples, Lyotard, Derrida and Foucault. We would be covering these three variations within postmodernism. So these variations within postmodernism are having one commonality, despite the fact that their subject matter is quite different within the umbrella terminology of postmodernism. But they are sharing one commonality, and that commonality is related to the distress to any account of human life in which it is basically being claimed that an access to truth has been achieved. So postmodernist के ये जो डेरिडा है, फूको है and Lyotard है, they reject every account of human life. अब every account of human life के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, I have already told you. Postmodernists, they usually declare that liberalism was basically based on account in which it was basically being claimed that an access to truth has been achieved. So was the case with the realist, with structuralist, and even with critical theory के proponents के लिए. लेकिन आज हम देखते हैं कि how these three peoples they help us to make a better understanding of postmodernism in international relations. Starting with Lyotard, the philosophy of Lyotard, postmodernist philosophy of Lyotard. Lyotard की postmodernist philosophy के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर we will be looking कि how Lyotard की जो philosophy है उसने has helped us to make a better understanding of postmodernism in international relations. जैसा कि मैंने आप लोगों को assumptions के अंदर भी बताया था कि जो postmodernist हैं they are critic of every grand narrative in international relations. They are critic of every grand narrative in international relations, चाहे वो liberalism की शक्ल में हो, चाहे वो realism की शक्ल में हो, structuralism, neo Marxism, scientific Marxism की शक्ल में हो, या it is coming up in the shape of critical theory. So वो क्या है? Basically ये जो up till whatever the theories they are existing up in front of us, postmodernists they are of the opinion के these narratives are basically grand narratives. These narratives are master narratives. These narratives are meta narratives, grand narratives. And in all of these narratives, postmodernists they believe that a claim is being made that an access to truth has been achieved. Access to truth has been achieved. और जो लियोटार्ड ये कहता है कि ये बात गलत है, बल्कि पोस्ट मॉडर्निस्ट ने
whatever the grand narratives they are existing in front of us, उन सबको उसने the stories of international relations declare किया और उनको कोई workable narrative declare नहीं किया which is having essence and which is going to help us to understand what is going on in the world and ultimately come up with the idea that they got the solution to the mysteries of the whole world. तो वो उन चीज़ों को वो रिजेक्ट कर रहा है. बेसिकली लियोटार्ड क्या कहता है? लियोटार्ड कहता है कि these grand narratives जो हैं and the meta narratives, they must be replaced with the modest and localized narratives. Localized means instead of the globalized narrative, localized narrative. Localized से क्या मतलब है? लोकल कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नैरेटिव्स होने चाहिए, ग्लोबल नैरेटिव्स नहीं होने चाहिए. मॉडेस्ट मतलब ग्रैंड का मतलब एक के बजाय ऐसे होने चाहिए जो हमें जगह दें दूसरे नैरेटिव्स की अंडरस्टैंड करने के लिए. So Lyotard was of the opinion that meta narratives or grand narratives, they must be replaced with the modest and localized narratives. So basically they were of the opinion that the narratives के it is वो grand narratives क्या, जैसा कि मैं आपको मिसाल देके बताता था, लिबरलिज्म के क्या कहते हैं? It is possible to bring about the greatest good for the greatest number of people. grand narrative है ना लिबरलिज्म की. मैं क्रिटिकल थियरी ने क्या बात की? क्रिटिकल थियरी ने बात की कि emancipation of all, we are universal in approach, we are willing to bring the whole world into a peaceful world and it is possible to bring about the emancipation of all. Realism में भी अच्छा, तो उनके ऊपर they are going to reject. So basically they came up with their response, a counter response to those grand narratives in the shape of they were of the opinion that grand narratives must be replaced with the modest and localized narratives. एक बात होगी. दूसरा, and these modest and localized narratives, they must be based on the specific local context, and these narratives must accommodate the diversity of human experience. They must accommodate the diversity of human experiences. अब क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक ग्रैंड नैरेटिव, फॉर इंस्टेंस जो फर्स्ट टू थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बारे में पीपल दे यूजुअली कम अप विद द आइडिया कि दे आर यूरोपियन कल्चर स्पेसिफिक हैं, यूरोपियन कल्चर स्पेसिफिक हैं. दी सफरिंग ऑफ द पीपल इन यूरोप, उसके ऊपर बेस करके वी कैन नॉट कम अप विद द जनरल आउटलाइन ऑफ अ थेरी, ग्रैंड थेरी, विच कैन हेल्प अस टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल वर्ल्ड. तो वो उस यूरोप के लोगों ने जो सफरिंग की उसको जहन में रख के वी आर नॉट सपोज टू यूनिवर्सलाइज दैट सफरिंग, उसको नहीं करना चाहिए. बल्कि इफ़ द पीपल दे आर सफरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सो व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू बी वेरी context specific, and then we have to understand that context, and then we have to understand how people they are suffering differently from context to different context to context. So the people who are suffering in Europe will not be having the same kind of suffering with reference to the suffering of people in the Oriental world. ऐसे नहीं हो सकता कि उन दोनों की सफरिंग सेम है. तो डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट. और उसके बाद दे केम फर्दर देयर आइडिया कि उनका ये मानना था कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ थ्योरेटिकल वर्ल्ड व्यूज़ होने चाहिए. इंस्टेड ऑफ कमिंग अप विद वन थ्योरी, एक थ्योरी के बजाय द नीड इज़ टू कम अप विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ थ्योरेटिकल वर्ल्ड व्यूज़. बहुत सारी मल्टीप्लिसिटी ऑफ थ्योरेटिकल व्यू होने चाहिए. तो बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, जो मोर स्पेसिफिकली जो लियोटार्ड है, उसके जो ज़्यादातर जो काम है वो ग्रैंड नैरेटिव के ऊपर है. उसका ये मानना है कि स्केप्टिसिज्म एंड अनसर्टेनिटी, इन दोनों को कंबाइन करके विद दी प्लुरैलिटी ऑफ वर्ल्ड व्यूज़ को जब हम देखेंगे, ओनली देन वी विल बी हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. इफ़ वी आर गोइंग टू believe whatever the narratives they are existing in front of us as they are, then we will never be in a position to have a better understanding of the whole world. तो इसके लिए the need is we have to be very skeptic about every existing grand narratives. We have to criticize, we have to come up with a critique, and then we have to go for criticism, and then we have to join that thing with the plurality of worldviews,
एंड दिस इज़ हाउ वी विल बी मेकिंग अ बेटर आइडिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये जो मैं आपको जो बात बता रहा था, इसके ऊपर लियोटार्ड का ये मानना है कि वट एवर दी ग्रैंड नैरेटिव्स वी आर हैविंग, these grand narratives, they are not helping us to understand whatever what is happening in this world. इस दुनिया में क्या हो रहा है, it is not going to help us to understand what is helping what is going on in this world basically। वो ये कहते हैं, वो इन ग्रैंड नैरेटिव्स को रिजेक्ट करते हैं, चाहे वो ग्रैंड नैरेटिव चाहे रिलीजन का है, चाहे ग्रैंड नैरेटिव वो किसी फिलासफी का है, चाहे ग्रैंड नैरेटिव्स वो किसी थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। अब वो बेसिकली दे आर गोइंग टू क्रिटिसाइज एवरी ग्रैंड नैरेटिव्स। अब किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, उनका ये मानना है पोस्ट मॉडर्निस्ट का, वो ये कहते हैं कि ये जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं ये बाइस्ड हैं, दे आर बेस्ड ऑन हाफ ट्रूथ। ये हाफ ट्रूथ के ऊपर बेस करते हैं। ये कैसे हाफ ट्रूथ के ऊपर है, ये जब हम डेरिडा को पढ़ेंगे तब हमें ज़्यादा समझ आएगी। लेकिन दे रिजेक्ट एवरी ग्रैंड नैरेटिव, एवरी ग्रैंड थियरी। For instance, they are even going to pose a question to the universality of religion, or even to the very idea of God। idea of God के ऊपर they are going to raise question। किस तरीके से कि वही उनका ये मानना है कि whatever you learn in different religious books, that for instance जो ये जो होली टेस्टामेंट में लिखा था कि बाइबल में जो लिखा है गॉड हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड इन 6 days, कहता नो ये दिस इज़ द ओनली स्टोरी दैट इज़ कमिंग अप आउट ऑफ द बाइबल। ये बाइबल ने दी है, बाइबल से आ रही है। अब कार्ल मार्क्स ने जैसे कहा कि द हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रगल बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, तो उसके ऊपर भी इन्होंने जाके पोस्ट मॉडर्निस्ट ने कहा कि इट इज़ जस्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री दैट इज़ कमिंग अप थ्रू द पेजेस ऑफ कार्ल मार्क्स बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो बेसिकली ये जो जितने भी ग्रैंड नैरेटिव्स हैं दे कम अप विद द आइडिया कि देयर इज़ अ पर्पस ऑफ लाइफ। पोस्ट मॉडर्निस्ट दे यूजुअली कम अप विद द आइडिया देयर इज़ नो पर्पस ऑफ लाइफ, कोई भी ऐसा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। तो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, कहते हैं जस्ट टेक द होल वर्ल्ड लाइक अ टेक्स्ट, जस्ट टेक द होल वर्ल्ड लाइक अ टेक्स्ट। एक बुक की, ये पूरी दुनिया एक बुक की शक्ल में समझो इसको ज़रा। किस तरीके से कहता what we are doing actually when we read this book of the world we understand it, we interpret it। तो इसका क्या मतलब है, you are not actually having an access to truth and reality। what you are doing actually, you are just having the interpretation of the meanings which are written in the book of the world। अब इसके ऊपर एक लिटरेचर के अंदर, क्योंकि ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है ये दे आर हैवीली बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिटरेचर से बहुत इन्फ्लुएंस हैं। तो लिटरेचर का एक सब्जेक्ट है क्रिटिसिज्म, उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त इस आइडिया को मैं बता देता हूँ आप लोगों को, उससे ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में मदद आएगी। उसने कहा कि ये जो वर्ल्ड है इट इज़ नॉट द रियलिटी, इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रियलिटी। अब वो किस तरीके से बताते हैं लिटरेचर के अंदर क्रिटिसिज्म में, वो ये कहते हैं कि गॉड हैज़ मेड दिस वर्ल्ड, फॉर लिटरेचर के अंदर अ गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। सो गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द आइडिया विच गॉड वॉज हैविंग इन हिज माइंड। So that idea was actually the reality, and the world is basically the interpretation of that reality। And when human beings they are going to interpret that reality, ये जो interpretation है, when human beings they try to understand this world, तो they are not going to have a direct access to reality। वो इस access को, बल्कि their interpretation of this world is basically the device removed from reality। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ। कहते हैं एक्चुअल द आइडिया ऑफ द मेकिंग ऑफ दिस वर्ल्ड वाज इन द माइंड ऑफ गॉड, दैट वाज द एक्चुअल रियलिटी। एंड व्हेन गॉड ट्रांसलेटेड दैट आइडिया, जब गॉड ने उस आइडिया को ट्रांसलेट किया इन द शेप ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, सो दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड वाज बेसिकली वंस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, वंस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। तो when human beings they are trying to understand this world,
तो their interpretation is basically not of reality, their interpretation is of the interpretation. So human understanding of this world is twice removed from reality. Once removed तो वो हो गया जब खुदा ने वर्ल्ड को ट्रांसलेट किया into this world. The actual reality was the idea of God, और गॉड ने उस आइडिया को जब ट्रांसलेट किया तो इस वर्ल्ड में, तो ये जो वर्ल्ड है, ये जो क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज वंस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. और उसके बाद, और व्हेन ह्यूमन बीइंग्स दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, so their understanding of this world is not basically their understanding of this reality. Their understanding is basically the interpretation of the interpretation. ये इसलिए ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं उनका ये मानना है वी आर नॉट गोइंग टू हैव एन डायरेक्ट एक्सेस टू ट्रूथ, एक्सेस टू रियलिटी नहीं हम लेके जा रहे हैं. जिस तरह दुनिया एक वर्ड जो है एक बुक है एंड वी रीड दिस बुक एंड वी इंटरप्रेट दिस बुक, तो बेसिकली हम इस वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हैं और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है. मेरी बात समझ आ रही है? इस बुक के एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं है. मीनिंग्स आर समथिंग रिलेटेड टू आवर इंटरप्रिटेशन. So what we have just the interpretation or interpretation of others' interpretation. We are not, liberalism की जो interpretation of the world थी वो basically is not the access to truth and reality. It is just liberal interpretation of the world. Realists ने जब when they came up, जब वो आए तो they are not going to give us a direct access to truth and reality. How they perceive this reality, how they perceive this world. So realist basically, जो realism है, it is basically the realist interpretation of this world. इसी तरीके अदर. So ये जो लियोटार्ड का ये मानना है, ये जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं they are just the interpretation. We only read and interpret the word. We only read and interpret the text written in the book and read and interpret of the other interpretation. So what we have just the interpretation or the interpretation of others' interpretation. मतलब क्या मतलब ये हुआ बच्चों कि we are not going to after studying this whole knowledge, whatever the books are available to us, whatever the knowledges they are available to us, they are not giving us a direct access to truth and reality. It is just the interpretation and or what we have the interpretation of the interpretation. तो बच्चों ये मेरी बात समझ आई आप लोगों को, ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये था, दिस वाज द फिलॉसफी ऑफ लियोटार्ड, एंड लियोटार्ड वाज कमिंग अप विद द आइडिया के ग्रैंड नैरेटिव्स एंड मॉडेस्ट नैरेटिव्स दे मस्ट बी रिप्लेस विद द मॉडेस्ट grand or master narrative must be replaced with the modest and localized narratives, and in those narratives human experiences they must be given more value, and this is how we would be coming up with the multiplicity of theoretical worldviews, and this is how we would be understanding the world. These narratives are based on half truth. They are not going to give us the complete picture of international relations. ये हमें complete picture of international relations नहीं दे रहे. They are just based on half truth. अब जो अगला वेरिएशन है, अगला वेरिएशन विद इन पोस्ट मॉडर्निज्म दैट इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट दैट वी पीपल आर यूजिंग इज रिलेटेड टू द याक्स डेरिडा. याक्स डेरिडा का अभी भी कह रहा था कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो हम इसको ज़रा समझ लेते हैं. याक्स डेरिडा केम अप विद द आइडिया ऑफ द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरीज, डीकंस्ट्रक्शंस ऑफ बाइनरीज. अब वो है क्या, मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय लास्ट क्लास कि ये जो बाइनरी ऑपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज गिवन बाय फ्रेंच राइटर फर्डिनेंड डी सॉसर, एंड फर्डिनेंड डी सॉसर वाज ऑफ द ओपिनियन कि बाइनरी जो हैं, बाइनरीज जो हैं, बाइनरी ऑपोजिशन, they give the meaning to the unit of language, and this is how ये जो unit of language have some value and meaning attached to it. Each unit of the binary is basically defined in reciprocal determination with the other term.
अब वो बेसिकली ये दिस बाइनरी अपोजिशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया के ह्यूमन बींग्स they have the tendency to think in opposite terms. For instance, if human being, if we are willing to understand the whole idea of light, then at the back of the mind we would be having the complete sense understanding of the idea of very darkness. हमें पता होगा कि क्या darkness है, and only then we would be having a better understanding of what you call light. जिस तरीके से reason है and passion है, ये भी एक बाइनरी है, और men है and women है, ये भी एक बाइनरी है. सो फर्डिनेंड डी सासर कहता था ये जो बाइनरी जो हैं, बाइनरीज जो हैं, they give meaning to the unit of language. They give meaning to the unit of language. So these जो बाइनरी ये जो बाइनरीज हैं, बाइनरी अपोजिशन जो हैं, they are not contradictory in relation. They are not these binary oppositions are not based on a contradictory relation, but it is basically the binary opposition is based on a structurally complementary. ये structurally complementary है. तो इसका ये basically एक idea है कि all elements of human culture जो हैं could be understood in relation to one another. All elements of human culture could be understood in relation to one another and how they function within a larger context. So binary opposition, they are having a structural complementary relationship. It is not based on contradictory, and if we want to have a better understanding of the language, then we have to first think how binary oppositions they are being used. और याक्स डेरिडा का ये मानना है कि whatever the binaries they are existing in language, they are biased, they are prejudiced. They are biased and they are prejudiced. So if we want to have a better understanding of the actual meaning which a language, the text is giving to us, then we have to adopt a critical method, जिसको वो कहता था deconstruction. We have to adopt the method of deconstruction of binary opposition. हमें, if we want to have a better understanding of the very meaning of the text, अगर हमें उसके असल मीनिंग तक पहुंचना है, then we have to deconstruct these binary opposition. And deconstruction is basically a critical method of reading the text to find out the hidden meaning. इसके hidden meaning को find करने के लिए. It is a critical method of reading a text to expose the ways in which meaning is constructed. तो याक्स डेरिडा का ये मानना था कि ये जो यूनिट ऑफ, ये जो लैंग्वेज है, whatever the language is in front of us, और जो मीनिंग, जो apparent मीनिंग हमारे सामने हैं, these meanings ये असल मीनिंग नहीं है, और whatever the knowledge or whatever the meanings they are given to us, they are biased and prejudiced. ये याक्स डेरिडा कह रहा है. और if in order to find out the actual meaning of the text, then we have to employ the method of deconstruction. Only then we will be finding out. अब वो मिसाल दे के आपको बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में बताता है कि ये जो कहता है deconstruction जो है, deconstruction ये basically आपको मदद देगी to find out how biased and prejudiced meanings they are constructed, how biased half truth is being delivered, how biased and prejudiced knowledge is given to us, and what we are doing, we are going to accept them as they are. Whatever they are willing to give us, we are going to accept it without any objection, without any rejection. हम इसको, और तो वो अब मिसाल देके आपको बताता है, ज़रा गौर से समझिएगा. वो कहता है कि पहले समझो हाउ दिस बाइनरी अपोजिशन इज बेसिकली बीइंग मेड इन द टेक्स्ट, ये कैसे बनाया गया है. तो उसका वो ये मानना है कि ये जो वो कहता है, फॉर इंस्टेंस whatever the philosophy is existing in front of us, whatever, चाहे वो religious philosophy है, social philosophy है, political philosophy है, कुछ भी जो philosophy है is existing. जो philosophy है, it is basically based on metaphysics. Metaphysics means having no connection with direct reality. ये imperceptible abstract है सारे के सारे, और
और ये जो मेटाफिजिक्स है, जो भी फिलासफी है, चाहे रिलीजियस है, चाहे सोशल फिलासफी है, पॉलिटिकल फिलासफी है, फिलासफी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, इट इज़ बेसिकली, ये जो है ये मेटाफिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। और ये जो बेसिकली है, और मेटाफिजिक्स जो है, जो मेटाफिजिक्स, और फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे के आपको बताता है कि ये जो मेटाफिजिक्स है, इट इज़ बेस्ड ऑन फिक्शन। और जो फिक्शन के जो सारे जो मीनिंग है, जो दे आर बीइंग यूज्ड थ्रू द होल हायरार्की ऑफ वर्ड्स। और वो ये क्या कहता है कि ये जो रिलीजियस का ले लो आप, फॉर इंस्टेंस रिलीजन की जो फिलासफी है, इट इज़ बेस्ड ऑन द बाइनरी अपोजिशन ऑफ द गॉड एंड द ह्यूमन सब्जेक्ट, या द क्रिएटर एंड द क्रिएटेड की बाइनरी अपोजिशन के ऊपर ये बेस करता है। तो ये जो वो ये कहता है कि ये जो गॉड एंड द जो क्रिएटर एंड द क्रिएटेड की जो बाइनरी अपोजिशन है, इसकी जो फर्स्ट टर्म जो है इसकी, इट इज़ बेसिकली द ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर। और जो ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर है इज ऑलवेज कंसिडर्ड सुपीरियर ओवर द अदर। अब जैसा कि रिलीजन की फिलॉसफी के अंदर जो क्रिएटर गॉड है वो ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर है, एंड दिस ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर इज गोइंग टू गिव मीनिंग्स टू ऑल अदर थिंग्स। इसी के साथ यही मीनिंग देता है हर अदर को। और जो दूसरी जो टर्म है इस बाइनरी की, जो क्रिएटेड है, वो इन्फीरियर है। जैसे कि एक हमारे जो मैन एंड वीमेन की अगर बाइनरी में अगर हम ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर देखें तो वो मैन है। मैन इज गोइंग टू गिव मीनिंग टू द होल मीनिंग ऑफ द होल वर्ल्ड, जो मीनिंग टू द वर्ड ऑफ वीमेन। लाइट एंड डार्कनेस के ऊपर लाइट इज गोइंग टू गिव मीनिंग टू द होल वर्ड ऑफ डार्कनेस। तो ये जो डेरिडा का ये मानना था कि फर्स्ट टर्म इन दिस बाइनरी अपोजिशन जो है ये इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ प्रिविलेज्ड एंटिटी, एंड सेकंड टर्म जो है इज ऑलवेज कंसिडर्ड एन इंफीरियर। सो व्हाई कांट वी हैव women and men, created and the creator? इस तरह की बाइनरी क्यों नहीं? क्योंकि पावरफुल ऑलवेज वांटेड टू पुट इटसेल्फ ऑन द फर्स्ट ऑफ द बाइनरी अपोजिशन, एंड वही हायरार्की ऑफ मीनिंग क्रिएट किया जो पावरफुल ने चाहा कि वो जो चाहता है वही हमें नॉलेज दिया, वही मीनिंग दिया। सो क्रिएटर जो है वो ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर है, एक ऐसा डेफिनेटिव वर्ड है विच इज गोइंग टू मीनिंग टू ऑल अदर थिंग्स। और ये जितनी फिलॉसफीज हैं दे आर बेस्ड ऑन फिक्शन, और ये जो फिक्शन है ये ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर की बाइनरी अपोजिशन के ऊपर है, बाइनरी अपोजिशन के ऊपर है। और इसकी पहली टर्म ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर है, और ये जो ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर है इज गोइंग टू गिव क्रिएट द होल हायरार्की ऑफ मीनिंग, एक होल हायरार्की ऑफ मीनिंग है। इसी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो वॉट एवर द नॉलेज इज इन फ्रंट ऑफ अस, ये इज ऑलवेज सपोर्टिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द बाइनरी। इसके लिए सेकंड टर्म, सेकंड की फीलिंग, सेकंड के मामलात, उसकी सफरिंग का कोई सरोकार नहीं है। इट इज, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज बायस्ड, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन। तो वो ये कहता है कि ये जो बाइनरी अपोजिशन है, इफ वी वांट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of the word, of any text, of the knowledge, then we have to be very critical in our mode of analysis, and that critical method को उसने बताया कि इसको किया जाना चाहिए through the deconstruction of binary opposition। तो वो ये कहता है ये जो binary opposition है, the main problem with this binary opposition is कि it creates boundaries, ये boundaries create करता है, rigid boundaries between what is acceptable and what is not acceptable, what is self and what is not self, other,
what is truth and what is false, what is rational and what is irrational, what is acceptable, what is not acceptable. तो बेसिकली ये जो नॉलेज है जो हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहा है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन कंट्राडिक्शन, it is based on bias and prejudices. So if we want to have a better understanding of the hidden meaning, then we have to be very critical and we have to adopt a method of deconstruction, and only then we would be finding the 100% truth and access to reality, otherwise not. और बाइनरी अपोजिशन ही हमें, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी अपोजिशन ही हमें इस काबिल करेगी कि हम इस चीज़ों को समझ सकें. और बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, कोई नहीं बोल रहा, आगे चलते हैं. उसके बाद ये हमने देखा याक्स डेरिडा, ये जो याक्स डेरिडा की. अब याक्स डेरिडा का एक और काम भी है दैट इज़ रिलेटेड टू इस क्रिटिक, इसका क्रिटिक ऑफ फिलॉसफी जो मैंने पहले बताया. ही इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट के द एग्जिस्टिंग फिलॉसफीज दे आर गोइंग टू मैंने जैसे कि आपको बताया कि याक्स डेरिडा वाज वेरी क्रिटिक ऑफ फिलॉसफी, और फिलॉसफी के अंदर ही वाज ऑफ द ओपिनियन के फिलॉसफी को ही वाज गोइंग टू रिजेक्ट ऑन द ग्राउंड के फिलॉसफी इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस अ सिंगल ट्रूथ और वन कंसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ, ये हमें नहीं दे सकती है. ही वॉज वेरी क्रिटिक ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी के, उसको भी कहता था कि इट इज़ बेस्ड ऑन फोनोसेंटिसिज्म. अब ये फोनोसेंटिसिज्म की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ हुई है कि फोनोसेंटिसिज्म इज़ बेसिकली अ बिलीफ के whatever the message which is basically being given, delivered while using the sound and speech is more superior to the message which is conveyed, delivered by the written language. So spoken जो language है, जो spoken language is more fundamental method of communication, जबकि writing जो है it is just derived meaning of capturing the speech. तो वो ये कहता था कि ये जो वेस्टर्न फिलासफी है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन वन अथॉरिटेटिव वॉइस. जिस तरीके से हम ये कहते हैं अ मैसेज विच इज़ डिलीवर्ड बाय द साउंड एंड स्पीच इज़ हैविंग मोर एडवांटेज ओवर अ मैसेज विच इज़ कन्वेड डिलीवर्ड थ्रू राइटिंग, कि इसी तरीके से वो ये कहता है कि जो वेस्टर्न फिलासफी है ये इट इज़ हैविंग अथॉरिटेटिव जो वॉइस है, ये एक अथॉरिटेटिव वॉइस है विच इज़ हैविंग सुपीरियरिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, मोर एक्सेप्टेबिलिटी देन ऑल अदर फिलासफीज एग्जिस्टिंग इन फ्रंट ऑफ अस. और इसी वजह से वो उसका ये मानना था कि ये जो वेस्टर्न फिलासफी है इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस वन कंसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ कि ये ऐसे होगा, और ये इट इज़ आल्सो गोइंग टू हैव going to make a better understanding of the very idea of good life, या ये हमें एक अच्छी जगह का, ये एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड दे सकती है. नहीं, ऐसा नहीं. वो ये इसलिए याक्स जो डेरिडा था ही वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ द वेरी एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिलासफी, हर कॉन्सेप्ट. लेकिन याक्स डेरिडा ने जब फिलासफी डीकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी अपोजिशन को यूज़ करके बताया कि हाउ टू फाइंड द हिडन मीनिंग written in the text, how to expose the biased and prejudiced meaning of the language, इसी तरीके से उसने ये जो याक्स डेरिडा है उसका एक और बहुत अहम काम है जो उसने बताया कि हाउ द बाउंड्रीज दे आर बेसिकली बीइंग कंस्ट्रक्टेड थ्रू द बाइनरी अपोजिशन एंड थ्रू द बाइनरी अपोजिशन. बाउंड्री कैसे किया जाता है, वो उसका ये मानना है. उसने एक पूरे का पूरा लिटरेचर बिल्ड किया है दैट इज़ रिलेटेड टू दी नोशन ऑफ अदरनेस. हमने क्रिटिकल थ्योरी के अंदर भी एक आइडिया ऑफ अदरनेस पढ़ा था. अब हमने यहाँ पे भी उसको ज़रा थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. या ये जो डेरिडा था उसने कहा था कि उसका जो द नोशन ऑफ अदरनेस है इज़ बेसिकली बेस्ड इट इज़ ऑल अबाउट द वॉइस दैट इज़ बीइंग साइलेंस्ड,
or the human experience which is basically being marginalized, not being discussed. When the stories about truth they were being written, or when the truth was being asserted. So basically the notion of otherness is all about giving voice to the voiceless, or the voice that is giving voice to those those section of society whose voice is being silenced, जिसकी वॉइस साइलेंस्ड है. यानी कि तो जो नोशन ऑफ अदरनेस है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दी गिविंग वॉइस टू दी वॉइसलेस, or noting down the experiences of the marginalized section of society when truth was being written, asserted. तो वो ये कहता है द कॉन्सेप्ट जो अदर है, इट इज़ बेसिक, ये जो अदर कंस्ट्रक्शन जो अदर है, इट इज़ बेस्ड ऑन 2 स्टेप्स कि किस तरीके से ये बनता है. पहला वो इसका ये कहता है कि जो ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर है वो बाउंड्री क्रिएट कर रहा है बिटवीन दी एक्सेप्टेबल एंड नॉट एक्सेप्टेबल, जो बिटवीन दी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर ये बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, और वो जो बाउंड्री है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दी डाइकोटमी, एंड दिस डाइकोटमी इज़ बेसिकली कन्वर्टेड इनटू हायरार्की. और ये जो दर्जा बंदी है हायरार्की है, एंड दिस हायरार्की के अंदर फर्स्ट टर्म इज़ ऑलवेज बीइंग कंसिडर्ड एज सुपीरियर, एंड द सेकंड टर्म ऑलवेज बिकम इन्फीरियर. और इस तरीके से पहले जैक्स डेरिडा का ये मानना है कि बाइनरी अपोजिशन हैज़ क्रिएटेड दी डाइकोटमी क्रिएट की बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और फिर दिस डाइकोटमी इज़ बेसिकली कन्वर्टेड इनटू अ हायरार्की, एंड इन इस हायरार्की में, इस दर्जा बंदी में, द फर्स्ट टर्म इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड सुपीरियर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एंड सेकेंड टर्म इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड इन्फीरियर. अब याद रखिएगा, ये जो डाइकोटमी है ये, और ये जो हायरार्की क्रिएट की गई है, ये इंटेंशनली क्रिएट की गई है, बिकॉज सेल्फ ओनली एग्जिस्ट व्हेन द अदर इज एग्जिस्टिंग. सेल्फ इज ओनली कंसिडर्ड मीनिंगफुल when it is put in such a dichotomy between the self and non-self. So if the other is not existing, then there would be no value and meaning of the self. होगा नहीं. तो self in order to assert itself वो क्रिएट करता है अदर, और फिर ये जो डाइकोटमी एंड हायरार्की क्रिएट की जाती है बिटवीन द सेल्फ एंड अदर के अंदर, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के अंदर, इसके बाद कंसिडर किया जाता है कि ये जो सेल्फ की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है, जो सेल्फ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो सेंस की वैल्यू सिस्टम है, जो सेल्फ की मोरालिटी है, जो सेल्फ की एथिक्स है, उसको अगले स्टेप में यूनिवर्सलाइज किया जाता है और बताया जाता है जो सेल्फ की मोरालिटी और एथिक्स हैं वही सुप्रीम है, जो सेल्फ की वैल्यू सिस्टम है वही सुप्रीम है, जो सेल्फ की फिलॉसफी, जो नॉलेज और एक्सपीरियंसेस हैं वही सुप्रीम है, और उसके अगेंस्ट जो अदर है उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई मोरालिटी नहीं, उसकी कोई एथिक नहीं, और वो ऑलवेज इन्फीरियर है. और इस तरीके से इंपीरियलिज्म ने दुनिया के अंदर क्या किया, जो सेल्फ, जो एक खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, जो एलीट क्लास की जो एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज, मॉरल, नॉलेज जो भी था, उसको यूनिवर्सलाइज कर दिया गया और उसको सुपीरियर के तौर पे प्रेजेंट किया गया. और अब दुनिया के अंदर हमेशा जब भी किसी कल्चर की, किसी एक्सपीरियंस की वैल्यू को मेजर किया जाता है, वो हमेशा वैल्यू को मेजर किया जाता है इन कंपैरिजन टू दी कल्चर ऑफ दी ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर की फर्स्ट टर्म
द वैल्यू सिस्टम ऑफ द वेस्ट, द वैल्यू सिस्टम ऑफ द यूरोपियन, उनको हमेशा कंसिडर किया जाता है। और ये मैंने जैसे कि बताया, पहले क्या किया जाता है, पहले किया जाता है एक डाइकोटमी क्रिएट की जाती है बाइनरी के थ्रू, और फिर इस डाइकोटमी को हायरार्की में चेंज किया जाता है, और हायरार्की को जानबूझ के क्रिएट किया जाता है। और फिर जो फर्स्ट टर्म के जितने एक्सपीरियंसेस हैं, जितने इसके नॉलेज हैं, जितने इसके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, उसको हमेशा पूरी दुनिया में प्रोपोगेट किया जाता है, यूनिवर्सल बताया जाता है, सुपीरियर कंसिडर किया जाता है। और पूरी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसके जितने कल्चर्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं, एथिक्स हैं, मोरालिटी हैं, उनको हमेशा इन कंपैरिजन टू दी एक्सपीरियंसेस, नॉर्म्स, कल्चर एंड वैल्यू मेजर किया जाता है, और ऑलवेज कंसिडर किया जाता है इंफीरियर, हमेशा किया जाता है। और जो पावर्स हैं, और ये सारा काम किसने किया, ये आपके मॉडर्निटी ने किया, आपके एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट ने किया। और इस तरीके से तो याक्स डेरिडा का जितना भी पोस्ट मॉडर्न, बहुत सारे डाइवर्स आइडियाज़ हैं, लेकिन इस टेक्स्ट के अंदर 3 चीज़ों को बताया गया कि हाउ टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट बायस्ड और प्रेजुडिस्ड है। फिर उसने बताया कि फ़िलासफ़ी जो है, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, इट इज़ बेस्ड ऑन द फोनोसेंट्रिसिज्म, ये एक अथॉरिटेटिव साउंड है, और इसी की फ़िलासफ़ी को हमेशा कंसिडर सुपीरियर किया जाता है, इसको सुपीरियर कंसिडर किया जाता है। और बाकी जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हैं उनको इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है। और ये बेसिकली जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है, इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एनलाइटनमेंट, और एनलाइटनमेंट बाउंड्रीज क्रिएट कर रही है बिटवीन द सिविलाइज्ड एंड द बारबेरिक की वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज डिक्शन यूज़ करके। और फिर उसने बताया कि किस तरीके से ये जो एनलाइटनमेंट ने और मॉडर्निटी ने ये जो पूरी हायरार्की ऑफ फ़िलासफ़ी क्रिएट की है, उसके अंदर किस तरीके से द नोशन ऑफ अदरनेस क्रिएट किया जाता है। और उसके मैंने आपको बताया इट इज़ बेस्ड ऑन 2 स्टेप्स। तो ये याक्स डेरिडा की जो उसने पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर हमें बताया कि हाउ ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इसके अंदर द एलीट्स एंड द जो पावरफुल हैं, they are only giving us their own version of the world, they are only giving us their own understanding of the world, and their understanding and their version of the world is biased and prejudiced. It is just reflecting the understanding of the world, और इसको अगर इस तरीके से कहें, it is just protecting the interest of the elite and the powerful in the society, and it is not going to talk about the marginalized section of the society. और ये उनकी बात नहीं करता। हालांकि बाइनरी जो फर्डिनेंड डी सासर का भी कहना था कि ये जो बाइनरी अपोजिशन है, ये बेसिकली स्ट्रक्चरली कम्प्लीमेंट्री है। तो जो फर्स्ट टर्म है, it could be understood with reference to the other term, and the second term would be understood with reference to the first term. ये स्ट्रक्चरली कम्प्लीमेंट्री है, और इसके बगैर जो मीनिंग से अंडरस्टूड नहीं हो सकते। और याक्स डेरिडा ने कहा कि जो पावरफुल एलीट्स हैं, उन्होंने ये नॉलेज इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है कि इट इज़ जस्ट गिविंग प्रिविलेजेस टू द फर्स्ट टर्म, एंड दी जो सेकेंड हाफ जो है, जो 50% ऑफ दिस बाइनरी है, वो मार्जिनलाइज है, उसकी वॉइस को उसकी वॉइस इज़ नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, उसको नहीं दिया गया। तो डेरिडा ने हमें हेल्प किया टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, एंड हाउ टू डीकंस्ट्रक्ट द बाइनरी अपोजिशन, एंड हाउ टू डीकंस्ट्रक्ट द ग्रैंड नैरेटिव्स, द मास्टर नैरेटिव्स, इनको। उसके बाद एक और जो वेरिएशन है विद इन पोस्ट मॉडर्निज्म, दैट इज़ रिलेटेड टू दी वर्क्स ऑफ पॉल मिशेल फूको। इसने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी इसने आइडियाज़ दिए हैं, लेकिन वी वुड बी फोकसिंग ऑन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, ऑन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर नॉलेज रिलेशनशिप, और हिज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री। तो इस चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि डिस्कोर्स से क्या मुराद था फूको का।
अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर आई नीड योर 100%। वो ये कहता है कि जो डिस्कोर्स है, जो डिस्कोर्स ये ज़रा, ये जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स इज़ नॉट अ स्टोरी ऑफ समथिंग और समबॉडी। डिस्कोर्स स्टोरी ऑफ समबॉडी नहीं है। याद रखिएगा कि डिस्कोर्स का वर्ड हमने क्रिटिकल थ्योरी में यूज़ किया था। दैट वाज मोर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, दैट वाज मोर रिलेटेड टू द कन्वर्सेशन। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कोर्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, उसको ज़रा समझें। फूको का ये मानना था कि डिस्कोर्स इज़ नॉट अबाउट अ स्टोरी of something about something or somebody. Discourses, they are basically the practices, and these practices systematically form or create the object that they speak of. Let me say it again. Discourse is not the story about something or somebody, it is basically the practice, and these practices systematically form or create the objects that they speak of. सो डिस्कोर्सेस क्या हैं? डिस्कोर्सेस प्रैक्टिसेस हैं, और ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये एम्प्टी वेसल और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट करते हैं और उनको ट्रांसलेट करती हैं। तो डिस्कोर्सेस जो हैं, डिस्कोर्स क्रिएट प्रैक्टिसेस एंड दीज प्रैक्टिसेस लेटर ऑन बिकम द पार्ट ऑफ डिस्कोर्स। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो डिस्कोर्स का मीनिंग है, दैट इज मोर related to the what you call practices. The discourses create practices and these practices become discourses. So basically अगर हम इसको कहें कि discourse क्या है, discourse is itself a practice. discourse एक practice है, और discourse create the thing it speak of because it inscribe, ये जो discourse है, डिस्कोर्स क्रिएट द थिंग इट स्पीक ऑफ। इसका मतलब है जो डिस्कोर्स है वो प्रैक्टिस है, और जो प्रैक्टिस है वो मीनिंग इन्वेस्ट करती है किसके अंदर? एक एम्प्टी वेसल के अंदर। मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ। पहले दो चीज़ों को कंफर्म करें, मैं बताता हूँ। एक ये क्रिटिकल थ्योरी वाला डिस्कोर्स नहीं है जो कि दैट वाज मोर क्लोज टू द मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन, दैट वाज मोर क्लोज टू द मीनिंग ऑफ डायलॉग। नहीं, यहाँ पे जो डिस्कोर्सेस हैं, डिस्कोर्सेस आर द प्रैक्टिसेस, डिस्कोर्सेस आर द प्रैक्टिसेस। डिस्कोर्स इज इटसेल्फ अ प्रैक्टिस। डिस्कोर्स क्रिएट द थिंग इट स्पीक्स ऑफ, और ये जो डिस्कोर्स है ये एम्प्टी वेसल के अंदर मीनिंग डालती है। अब मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ कि विमेन, अब हमारे जो सोसाइटी के अंदर वीमेन, जो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर वीमेन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो माँ के तौर पे, बहन के तौर पर, वाइफ के तौर पर बहुत मुकद्दस मीनिंग अटैच है। इस्लाम ने जो औरत को माँ की हैसियत से, बहन की हैसियत से और वाइफ की हैसियत से बहुत मीनिंग दिए हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस क्रिएट करवाई हैं जिसने ये बहन भी औरत है, माँ भी औरत है, वाइफ भी औरत है, लेकिन इनकी डिफरेंट हैसियत क्रिएट जब की तो ऐसी प्रैक्टिसेस क्रिएट की जिन्होंने इनको, और इन प्रैक्टिसेस ऐसे मीनिंग जनरेट हुए कि ये बहुत तकद्दुस के रिश्ते कंसिडर किए जाने लगे। माँ के बारे में इस्लाम ने कहा कि जन्नत माँ के पैरों तले है। का मतलब क्या? ऐसी इस्लाम ने ऐसी प्रैक्टिसेस क्रिएट कर दी माँ के दर्जे से कि वालदा की जो फर्मा बरदारी है वो क्या है जी, वो तो जन्नत है। तो इस्लाम ने जो डिस्कोर्स वीमेन के बारे में जो क्रिएट किया, तो ऐसी इस डिस्कोर्स से ऐसी प्रैक्टिसेस क्रिएट हुई जिससे ये जो वीमेन हैं, तीनों वीमेन,
लेकिन उनकी ऐसी प्रैक्टिसेस क्रिएट की जिन्होंने औरत की डिफरेंट हैसियत में डिफरेंट मीनिंग क्रिएट किए। लेकिन बहुत सारी कुछ सोसाइटीज़ के अंदर वीमेन जैसे कि एफ्रोडाइट हैं, गॉडेस कंसिडर किए गई, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ के अंदर वीमेन को क्या कंसिडर किया जाता है? दे आर कंसिडर वेंटन एंड विचिस। वेंटन्स हैं वीमेन के ऊपर जो डिस्कोर्स है, मैं उसकी आपको मिसाल देके बता रहा हूँ कि इस्लामिक डिस्कोर्स बताया, और इस्लामिक डिस्कोर्स ने वीमेन के बारे में ऐसी प्रैक्टिसेस पैदा की कि औरत, ये तीनों हैसियत में एक ही औरत है, औरत ही, लेकिन ऐसी प्रैक्टिसेस पैदा हुई कि इनको उस एम्प्टी वेसल में डिफरेंट मीनिंग इंस्क्राइब कर दिए। लेकिन बहुत सारे सोसाइटीज़ के अंदर वीमेन को विचिस के तौर पे देखा जाता है, ट्रिचरस विचिस के तौर पे, कहीं पे वे केयरिंग वाइफ्स के तौर पे, मदर्स के तौर पे देखा जाता है, कहीं पे वेंटन्स एंड होर्स की शक्ल में देखा जाता है। तो बेसिकली तो ये क्या डिस्कोर्सेस जो हैं, ये प्रैक्टिसेस हैं, और प्रैक्टिसेस एम्प्टी वेसल के अंदर मीनिंग डालती हैं। तो ये मैंने आपको बेसिकली बताने की कोशिश की, जो डिस्कोर्सेस हैं वो प्रैक्टिसेस हैं, और ये जो प्रैक्टिसेस हैं दे आर रिलेटेड टू आवर डिस्कर्सिव कॉन्टेक्स्ट। ये हमारे डिस्कर्सिव कॉन्टेक्स्ट के साथ अटैच है। अब मैं आपको एक और मिसाल देके बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। ये जो लिबरल मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी है, इसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड एज रैशनल बीइंग, रैशनल ह्यूमन बीइंग। तो लिबरलिज्म ने जो इंसानों के बारे में जो डिस्कोर्स क्रिएट किया, वो बताया कि ह्यूमन बीइंग्स दे आर रैशनल बीइंग, दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स, दे आर गुड बाय नेचर। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं नहीं, जो इंसान है ये एक एम्प्टी वेसल है, एम्प्टी वेसल है, और इसको ये जो डिस्कोर्स इनटू प्रैक्टिसेस, और जो प्रैक्टिसेस हैं दे इंस्क्राइब मीनिंग इनटू द एम्प्टी वेसल ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट। और वो क्या है, वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं? फूको का ये जो मानना है कि ये जो ह्यूमन सब्जेक्ट है, इट इज़ बेसिकली ए प्रोडक्ट ऑफ पावर रिलेशन। इंसान मेल जो है बेसिकली उसको क्या हमने किया, ये जो उसको हमने बेसिकली इंसान ह्यूमन सब्जेक्ट क्या था, इंसान जो ह्यूमन सब्जेक्ट था वो तो एक बॉडी थी, एक एम्प्टी वेसल थी। और ह्यूमन ये जो लिबरल डिस्कोर्स था कि ह्यूमंस दे आर रैशनल बीइंग, दे आर गुड ह्यूमन बीइंग, और रियलिस्ट का जो था वो बैड ह्यूमन बीइंग, बैड नेचर, वो ये कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये एम्प्टी वेसल हैं, और इस एम्प्टी वेसल्स को प्रैक्टिसेस जो डिस्कोर्स हैं वो मीनिंग डालते हैं। और पोस्ट मॉडर्निस्ट जिन प्रैक्टिसेस से दे आर मोर कंसर्न्ड, जिसके ऊपर दे फोकस मोर हो, उसके ऊपर दे गॉट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एम्प्टी वेसल, जिसके अंदर मीनिंग्स दे आर बीइंग इंस्क्राइब्ड, और उसके बारे में उनका मानना है कि ह्यूमन सब्जेक्ट जो है इट इज़ बेसिकली a product of power relation, and this power relation to which we are all subjected throughout our lives। ये सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर देखें, फैमिली के अंदर देखें, स्कूल में देखें, मीडिया में देखें, तो और बेसिकली मैं इस क्या बताना चाह रहा हूँ, वो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो डिस्कोर्सेस हैं दे बेसिकली पुट मीनिंग इनटू द एम्प्टी वेसल ऑफ एनीथिंग। पेन है, उसको जहाद के तौर पे इसको पावर के साथ अटैच किया गया, एम्प्टी वेसल थी, लेकिन पावर इज नॉलेज के तौर पे जब डिक्लेयर किया गया तो बताया कि जो साफ़ी का कलम है वो बहुत पावरफुल है। तो ये एक प्रैक्टिस क्रिएट की गई। इसी तरीके से इंसान जो है, आपने देखा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स दे आर द प्रोडक्ट ऑफ पावर रिलेशनशिप। ये ज़्यादा अगर इसकी एनालॉजी और इमेजरी अगर हम देखें, वो हमें नज़र आता है कि आर्मी के अंदर अमूमन जब बंदों को भर्ती किया जाता है तो एक ख़ास एज के अंदर लिया जाता है उनको, और उसके बाद नहीं लिया जाता, क्योंकि जो मिलिट्री की अंडरस्टैंडिंग है कि जो जिस एज में वो बंदे को भर्ती करते हैं दैट इज़ दी बेस्ट एज टू कन्वर्ट दी पीपल टू, वो बहुत फ्लेक्सिबल टाइम होता है जिसमें
इंसानी शख्सियत को, ह्यूमन करैक्टर जो है, ह्यूमन जो सब्जेक्टिविटी है, जो उसकी नेचर है, उसको हम टेम कर सकते हैं और एक ख़ास माइंडसेट के साथ उसको बिल्ड किया जाता है। तो बेसिकली जो मिलिट्री का जो डिस्कोर्स, जो प्रैक्टिस है पावर नॉलेज के अंदर, पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर रिलेशन में, तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर उसकी एक ख़ास मेंटालिटी, उसकी एक ख़ास सब्जेक्टिविटी क्रिएट होती है, उसकी एक ख़ास पर्सनैलिटी, करैक्टर क्रिएट होता है। और वो तो इसी तरीके से हमारे घरों के अंदर ये जो फादर की जो फादरली फिगर है, मोर डोमिनेटिंग है ओवर द रेस्ट ऑफ अदर मैन एंड वीमेन की बाइनरी के अंदर अगर, तो बेसिकली वो फूको का ये मानना था कि ये जो मीनिंग इंस्क्राइब किए गए हैं एम्प्टी वेसल के अंदर, ह्यूमन सब्जेक्ट जो है ये इट इज़ ऑल अबाउट दी पावर रिलेशनशिप टू विच वी आर सब्जेक्टेड थ्रू आउट आवर लाइफ। ये हम किसी भी हैसियत में देख लें, ये पावर नॉलेज, पावर रिलेशनशिप चल रहा है और उसकी मैंने आपको मिसाल देके बताई है। तो जैसी जैसी प्रैक्टिसेस होंगी वैसी वैसी जो एम्प्टी वेसल्स हैं उनको मीनिंग्स मिलेंगे। वीमेन एक एम्प्टी वेसल है, लेकिन कल्चर टू कल्चर इसकी प्रैक्टिसेस वेरी करती हैं। इस्लामिक कल्चर के अंदर वीमेन की हर हैसियत के अंदर एक बेहतरीन प्रैक्टिसेस क्रिएट की गई और इस एम्प्टी वेसल ऑफ वीमेन के अंदर मीनिंग दिए गए। लेकिन कुछ जो कुछ सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर वीमेन दे आर ऑलवेज बीइंग कंसिडर्ड इंफीरियर, उनको इंफीरियर कंसिडर किया जाता है, उनको बाज़ का ट्रिचरिस होर्स के तौर पे दिखाया जाता है, वेंटन्स के तौर पे दिखाया जाता है। और जैसा कि मेरे सुल्तान के अंदर वीमेन को किस तरीके से बताया गया, वीमेन को मेरे सुल्तान बड़ा फेमस था और वो एम्प्टी वेसल में वीमेन, तो ये जो डिस्कोर्सेस हैं, ये प्रैक्टिसेस हैं और दीज प्रैक्टिसेस सिस्टमेटिकली क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स दे स्पीक ऑफ, जिसके बारे में ये बात करते हैं। और ये मैंने दो टर्मिनोलॉजी, एक वीमेन के जो एम्प्टी वेसल थी, डिस्कोर्सेस ने मीनिंग दिए और कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं, और इसी तरीके से ह्यूमन सब्जेक्ट एक एम्प्टी वेसल है विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर रिलेशनशिप, और उसकी मैंने मिसाल दी आर्मी के अंदर और वो किस तरीके से दुनिया। अब इसको मैं ज़रा थोड़ा सा फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका मतलब क्या है। अब इसको ज़रा ये देखें कि ये जो डिस्कोर्सेस, हाँ मैं बेटा इसको ख़त्म कर रहा हूँ जल्दी से, ज़रा इसको ज़रा देखते हैं। वो क्या है कि ये जो कॉन्सेप्शन है, जो डिस्कोर्स है, ये दे आर वेरी पावरफुल इन देमसेल्व्स, ये बहुत पावरफुल है अपने आप, एंड दे क्रिएट अ पार्टिकुलर नॉलेज, ये पार्टिकुलर नॉलेज क्रिएट करते हैं वगैरह और उसके बारे में। और ये जो कुछ भी प्रैक्टिसेस हैं, दे आर अटैच टू आवर डिस्कर्सिव कॉन्टेक्स्ट, वी थिंक वी नो, क्योंकि ये हमारे पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के साथ अटैच है। वी नो बिकॉज वी आर बीइंग टॉट, वी आर बीइंग टॉट इन द स्कूल्स। तो क्या ख़ास किस्म का नॉलेज, इस ख़ास किस्म का प्रैक्टिसेस हमें बताई गई और उसी के बारे में हम थिंक करते हैं, हम बिलीव करते हैं, हम सोचते हैं एंड और हम उनको रियलिटी कंसिडर करते हैं। और उसका वो मिसाल आपको देता है कि जो लोग सोसाइटी के अंदर पावरफुल होते हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है बजाय उन लोगों के जो कमज़ोर हैं, जो वीकर हैं, और उनकी चाहे मोरालिटी सुपीरियर हो लेकिन उसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। तो ये जो डिस्कोर्सेस हैं, दे आर अगेन अटैच्ड विद द चॉइस ऑफ द पावरफुल, और वही इसको टर्म करते हैं और वही इसको मीनिंग देते हैं, और अल्टीमेटली दे आर अटैच और दे अल्टीमेटली क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स दे स्पीक ऑफ। अब मैं जल्दी से ख़त्म आ रहा हूँ क्योंकि आपकी अगली क्लास का टाइम आ रहा है, तो मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। फूको का एक और काम है दैट इज़ रिलेटेड टू द हिस्ट्री। फूको इज़ गोइंग टू रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री गिवन बाय लिबरल्स। लिबरल क्या कहते थे कि आपने पढ़ा था कि इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दे हैव ए कंसर्न फॉर ईच अदर। तो इट इज़ पॉसिबल टू गो फॉर प्रोग्रेस, और ये जो हिस्ट्री है ये एक लीनियर प्रोसेस में मूव कर रही है और कंटिन्यूसली मूव कर रही है और एक ख़ास डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है। और लिबरल का आइडिया ऑफ हिस्ट्री ये था कि जो ह्यूमन पास्ट था वो इग्नोबल था, जो ह्यूमन प्रेजेंट है वो नोबल है, और जो फ्यूचर होगा वो सुपर नोबल होगा। या ह्यूमन जो पास्ट था वो बारबेरिक था, एंड जो अब प्रेजेंट है तो वो सिविलाइज्ड है और मोर अपीलिंग है। तो ये हिस्ट्री बताती है लिबरल का। फूको इसको रिजेक्ट करता है।
फूको ये कहता है कि वट एवर द हिस्ट्री इज बेसिकली गिवन टू अस, इट इज़ बेसिकली गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रेंड्स ऑफ हिस्ट्री। ये बड़े बड़े मेजर ट्रेंड्स की बात करती है। इट इज़ नॉट गोइंग टू एम्फेसाइज ऑन द सिंगुलैरिटी ऑफ मीनिंग्स, सिंगुलैरिटी ऑफ इवेंट्स के ऊपर फोकस नहीं करती, ये ट्रेंड्स को, लंबे लंबे ट्रेंड्स को देखती है। इसलिए ये इट इज़ गोइंग टू मिस दिस सिंगुलैरिटी ऑफ इवेंट्स, और इस वजह से जो हिस्ट्री है इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस दी होल ट्रूथ, होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। इस वजह से इट इज़ बेस्ड ऑन डिसकॉन्टिन्यूटीज एंड रप्चर्स, डिसकॉन्टिन्यूटीज के ऊपर बेस करती है और रप्चर्स के लिए। तो जिस तरीके से डेरिडा ने टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग ऑफ टेक्स्ट को उसने डिकंस्ट्रक्शन का मेथड लेकर आया था, फूको ने हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, हिस्ट्री के रप्चर्स को और डिसकॉन्टिन्यूटीज को फिल करने के लिए द पर्सन केम अप विद द मेथड ऑफ जीनियोलॉजी। And he was of the opinion, Foucault was of the opinion that when we would be employing the knowledge of genealogy, we would be tracing the discontinuities and ruptures, and this is how we would be finding the vice which is being marginalized, ignored in the record of history. ट्रेडिशनल जो हिस्ट्री है वो ट्रेंड्स को फोकस करती है, सिंगुलैरिटीज ऑफ इवेंट को नहीं देखती। और जीनियोलॉजी हमें क्या कहेगी, टू फाइंड आउट दोज ऑल दोज पीपल्स हुज वॉइस is being marginalized, not being recorded when the truth was being asserted, और उनकी वॉइस को मार्जिनलाइज कर दिया गया, ये इग्नोर कर दिया गया। और हिस्ट्री या तो वो फूको क्या कहता है, आपके सामने जो हिस्ट्री है या तो वो हीरोज़ की हिस्ट्री है या विलन्स की हिस्ट्री है, और वो हज़ारों लोगों की हिस्ट्री नहीं है जो हीरो के काज के लिए या विलन के काज के लिए मर गए। तो जीनियोलॉजी हमें बताएगी द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री और होल अंडरस्टूड जो एक्चुअल पिक्चर ऑफ हिस्ट्री, और वो रप्चर्स को, डिसकॉन्टिन्यूटीज़ को फिल करेगी। तो ये आज हमने पढ़े बच्चों 3 वेरिएशंस विद इन थ्योरी, जिसमें हमने ल्यूटार्ड का वर्क ऑन ग्रैंड नैरेटिव्स और क्रिटिसिज्म ऑन ग्रैंड नैरेटिव्स एंड हिज वर्क ऑन द मॉडर्स्ट क्रिएशन ऑफ मॉडर्स्ट एंड लोकलाइज्ड नैरेटिव्स। फिर हमने पढ़ा याक्स डेरिडा का काम related to the deconstruction, his critique of philosophy and the construction of other, and then we learned about the Foucault's knowledge of discourses, power knowledge relationship, and his critique of history and his method of genealogy. Guys, this is all about today. See you inshallah in my next immediate class.